شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ ان کے دل کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان۔ تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں پڑنے جا رہے ہو؟ رسول نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ، جیسے معجزات کے ساتھ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ نہیں ایمان لائی کوئی بستی ان سے پہلی جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو کیا یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گی؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلی مگر مردوں ہی کو بطور رسول، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اے قریشی مکہ، تم اہلی ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتی ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہوتی تھی۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسی چاہا اسی نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اے لوگو، اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا دوسری قوموں کو۔ پھر جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب تو اس سے بھاگنے لگے۔ اس وقت انہیں کہا گیا، اب بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے سامان تعیش اور محلات کی طرف، شاید کہ وہاں تمہیں پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری شامت، ہم تو خود ہی ظالم تھے۔ پھر وہ بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور راکھ کی مانند۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو وہ ضرور ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے۔ بلکہ ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب ہی وہ نابود ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس کی وجہ سے جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو ملائکہ مقربین اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں۔ وہ رات دن اس طرح اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں کہ تھکتے نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو نشو و نما دیتے ہیں؟ اگر ان دونوں زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ تو اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے جواب دہی نہیں ہو سکتی، اور ان سب کی جواب دہی ہوگی۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ اس کے مکرم بندے ہیں۔ وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں، اور وہ اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کی جس کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزاؤ ترساں رہتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا، تو اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، اسی طرح ہم بدلہ دیتی ہیں ظالموں کو۔ کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا؟ تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے، اور ہم نے اس کے اندر بڑی کشادہ راستے بنائی تاکہ یہ لوگ راہیاب ہوں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، لیکن یہ لوگ اس آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات دن، سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا،
तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो ये लोग क्या हमेशा रहेंगे? हर जानदार को मौत का मजा चखना है और हम आजमाते रहते हैं तुम लोगों को शर और खैर के जरिए से, और तुम सब लोग हमारी ही तरफ लौटा दिए जाओगे। और ए नबी, ये काफिर लोग जब भी आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं और वो खुद रहमान के जिक्र से मुनकिर है। क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है? इंसान बनाया गया है उजलत से। जल्द ही मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखा दूंगा, बस तुम लोग मुझसे जल्दी ना मचाओ। और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। काश इन काफिरों को मालूम होता उस वक्त के बारे में जब वो आग को हटा ना सकेंगे अपने चेहरों से, और ना ही अपनी पीठों से, और ना ही उनकी मदद की जाएगी, बल्कि वो यानी क़यामत उन पर अचानक आएगी और उन्हें मबहूत कर देगी। तो ना उनकी इस्तिताअत होगी उस क़यामत या अजाब को टालने की, और ना ही उन्हें कोई मोहलत मिलेगी। और ए नबी, आपसे पहले जो रसूल आए थे उनका भी मजाक उड़ाया गया था, तो फिर घेर लिया उनमें से मजाक उड़ाने वालों को उसी अजाब ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि कौन तुम्हारी हिफाजत करता है रात दिन रहमान की तरफ से, बल्कि ये लोग अपने रब के जिक्र से इराज किए हुए हैं। क्या उनके ऐसे माबूद हैं हमारे सिवा जो उनको बचाते हैं? वो तो खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते, और ना ही वो हमारे मुकाबले में उनकी मुसाहिबत कर सकते हैं। लेकिन हमने यानी दुनियावी नेमतें अता की उनको भी और उनके आबा व अजदाद को भी, यहां तक कि उन पर एक मुद्दत गुजर गई। क्या ये लोग देखते नहीं कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चली आ रहे हैं? तो क्या अब भी वो समझते हैं कि वही गालिब आने वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुम लोगों को खबरदार करता हूं वही के जरिए से, और बहरे नहीं सुनते किसी पुकार को जब उन्हें खबरदार किया जाता है। और अगर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के अजाब का एक भपका भी लग जाए तो फौरन चीख उठेंगे कि हाय हमारी शामत, हम ही जालिम थे, और हम क़यामत के दिन अदलो इंसाफ की मीज़ानें लाकर रख देंगे। फिर किसी जान पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर होगा कोई अमल राई के दाने के बराबर भी तो उसे हम ले आएंगे, और हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अता की थी फुरकान, किताब, रोशनी और नसीहत मुत्तकीन के लिए, जो डरते रहते हैं अपने रब से गैब में होने के बावजूद, और वो क़यामत के तसव्वुर से लर्ज़ाओं तरसा रहते हैं। और अब ये बाबरकत जिक्र कुरान हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम उसका इनकार कर रहे हो? और मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी सादत की राह बख्शी थी, और हम हर तरह से उसकी खबर रखते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि ये क्या मूर्तियां हैं जिनके लिए तुम लोग इतिकाफ किए रहते हो, उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह से इनकी इबादत करते पाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तो तुम भी और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे। वो कहने लगे कि क्या आप वाकई हमारे पास हक लाई हैं या महज शुगल कर रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि फिल वाकई तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, जिसने उन्हें पैदा किया है, और मैं खुद भी इस पर गवाह हूँ। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी इन बुतों के साथ जरूर कोई चाल चल के रहूंगा जबकि तुम चली जाओगी पीठ मोड़कर। तो आपने उन सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय इनके बड़े के, शायद कि वो उसकी तरफ रुजू करें। वो चिल्ला उठे, किसने किया है हमारे माबूदों के साथ ये सब कुछ? वो तो यकीनन कोई बहुत ही जालिम है। कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनके बारे में गलत बातें करते सुना था, जिसे इब्राहीम कहा जाता है। लोगों ने कहा कि फिर लाओ उसको सबके सामने ताकि वो गवाही दे। उन्होंने पूछा, ए इब्राहीम, क्या हमारे माबूदों के साथ ये सब कुछ तुमने किया है? आपने जवाब दिया, बल्कि ये इनके उस बड़े ने किया है। तुम पूछ देखो इनसे अगर ये बोलते हो। उस पर उन्होंने अपने अंदर ही अंदर सोचा और खुद कलामी करते हुए कहने लगे कि यकीनन तुम खुद ही जालिम हो। फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए। तुम तो जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम ने कहा, तो क्या तुम लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों को पूछते हो जो ना तो तुम्हें कुछ नफा दे सकती हैं और ना ही तुम्हारा कुछ नुकसान कर सकती हैं? तो है तुम पर भी और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो। तो क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? उन्होंने कहा, जला डालो इसे और मदद करो अपने माबूदों की अगर तुम्हें कुछ करना ही है। हमने हुक्म दिया कि ए आग, तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। और उन्होंने इरादा किया उसके साथ ही चाल चलने का,
लेकिन हमने उन्हीं को कर दिया खसारा उठाने वाले। और हम इब्राहिम को और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने बरकतें रखी हैं सब जहान वालों के लिए। और हमने उसको इसहाक अता फरमाया और याकूब उस पर मजीद, और इन सब को हमने सालिह बनाया। और हमने इन्हें इमाम बना दिया जो हिदायत देते थे हमारे हुक्म से, और हमने उनकी तरफ वही की नेक काम करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की, और वो सब के सब हमारी बंदगी करने वाले थे। और लूत को हमने हुक्म और इल्म अता फरमाया, और हमने इसे निजात दी उस बस्ती से जो गंदे काम करती थी। यकीनन वो निहायत बुरे और नाफरमान लोगों की कौम थी। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो हमारे सालेह बंदों में से था। और नूह को भी हमने अपनी हिदायत बख्शी जब उसने दुआ की थी इससे पहले, तो हमने उसकी दुआ कबूल की, तो हमने निजात दी उसको और उसके घर वालों को बहुत बड़े करब से। और हमने उसकी मदद की उस कौम के मुकाबले में जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था। यकीनन वो बहुत बुरे लोग थे, तो हमने उन सब को गरक कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को भी यही नेमत अता फरमाई जब वो एक खेती के बारे में फैसला कर रही थी, जब उसमें घुस गई थीं कुछ लोगों की बकरियां, और हम उनकी फैसले के वक्त वहां मौजूद थे। तो हमने फहम अता कर दिया इस फैसले का सुलेमान को, और हर एक को हमने हुक्म और इल्म अता किया था। और हमने मुसख्खर कर दिया था दाऊद के साथ पहाड़ों को जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था, और ये सब कुछ करने वाले हम ही थे। और हमने उन्हें तुम्हारे लिए लिबास की सनत सिखाई ताकि वो तुम्हें बचाए तुम्हारी जंग से, तो क्या तुम शुक्रगुजार बनते हो। और हमने मुसख्खर कर दिया था सुलेमान के लिए तेज चलने वाली हवा को जो उसकी हुक्म से चलती थी, उस सरजमीन की तरफ की जिसमें हमने बरकत अता की थी, और हम तमाम चीजों का इल्म रखने वाले हैं। और शयातीन में से भी हमने बहुत सौ को मुसख्खर कर दिया था जो उसके लिए समंदरों में गौताखोरी करते थे, और वो इसके अलावा बहुत से दूसरे काम भी करते थे, और हम ही उन पर निगरान थे। और अय्यूब पर भी हमारा फजल हुआ जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, और तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको जो तकलीफ थी उसे दूर कर दिया, और हमने उसे अता किए उसके घर वाले और उनके साथ इतने ही और भी अपनी तरफ से खास रहमत के तौर पर, और ताकि नसीहत याद दहानी हो इबादत करने वालों के लिए। और इसी तरह इस्माइल और इदरीस और जुल्किफल पर भी हमने फजल किया, वो सब साबिरीन में से थे, और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया। यकीनन वो सब सालिहीन में से थे। और मछली वाले को भी हमने नवाजा जब वो चल दिया गुस्से में भरा हुआ, और उसने गुमान किया कि हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। बस उसने अल्लाह ताला को तारीकियों के अंदर पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, और यकीनन मैं ही जालिमों में से हूं। तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसे गम से निजात दी। और इसी तरह हम निजात दिया करते हैं अहले ईमान को। और जकरिया को जब उसने पुकारा अपने रब को, परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़, और यकीनन तू ही बेहतरीन वारिस है, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसे याह्या जैसा बेटा अता फरमाया, और उसकी बीवी को उसके लिए सेहतमंद बना दिया। यकीनन ये लोग हैं जो भलाई के कामों में बहुत जल्दी करते थे, और हमें पुकारती थी रग़बत और खौफ से, और वो सब हमारे सामने आजिज़ी इख्तियार करने वाले थे। और वो खातून जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, तो हमने उसमें फूंक दिया अपनी रूह से, और हमने उसे और उसके बेटे को एक निशानी बना दिया तमाम जहान वालों के लिए। यकीनन ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, और मैं ही तुम सबका रब हूं, लिहाजा तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। और उन्होंने अपने मामले को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। ये सब के सब हमारी ही तरफ लौट कर आने वाले हैं। तो जो कोई भी नेक अमल करेगा और वो मोमिन भी होगा, तो उसकी सईयो कोशिश की नाकदरी नहीं की जाएगी, और हम उसके लिए उसके अमाल को लिख रहे हैं। और हराम है हर उस बस्ती पर जिसको हमने हलाक किया कि वो लौट आएं, अब वो लौटने वाले नहीं हैं। यहां तक कि जब खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज, और वो हर ऊंचाई के ऊपर से फिसलते हुए चले आएंगे, और करीब आ लगेगा वो सच्चा वादा, तो उस वक्त काफिरों की निगाहें पथरा जाएंगी। वो कहेंगे, हाय हमारी शामत, हम तो इसकी तरफ से गफलत में ही रहे, बल्कि हम खुद अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। यकीनन तुम लोग और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछती हो, सब जहन्नम का ईंधन बनोगी। तुम्हें इसमें पहुंच कर रहना है।
اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا تومار۔ جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کی بات کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہماری نیک بندی۔ یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اور اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اے نبی، آپ ان کو بتائیے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجیے کہ میں نے تو تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی، اور اسی بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتی ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید کہ اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو اور کچھ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دینا مقصود ہو۔ رسول نے کہا، پروردگار، اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دی، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہی ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو پہنچا کر رہے گا دوزخ کے عذاب تک۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائی جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے۔ اور ہم ٹھہرائی رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹی سی بچی کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہ رہی سب کچھ جاننے کے بعد۔ اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلاتی ہے اور ابھرتی ہے اور قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں اگا دیتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو اس پر مطمئن رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ وہ خسارے میں رہا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہی ہے بہت دور کی گمراہی۔
वो पुकारता है उसको जिसका ज़रर उसके नफ़ा से करीब तर है। बहुत ही बुरा है वो मददगार और बहुत ही बुरा है वो रफ़ीक। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उन बागों में जिनके दामन में नदियां बहती होंगी। यकीनन अल्लाह करता है जो चाहता है। जिस शख्स को ये गुमान हो कि अल्लाह हरगिज उसकी मदद नहीं करेगा दुनिया और आखिरत में, तो उसे चाहिए कि वो एक रस्सी आसमान की तरफ ताने, फिर उसे काट दे, फिर देखे कि क्या उसकी ये तदबीर उस चीज को दूर कर देती है जो उसे गुस्सा में लाती है। और इसी तरह हमने नाजिल किया है इस कुरान को रोशन निशानियों की शक्ल में, और ये कि अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है। इसका दूसरा तर्जुमा ये भी है कि अल्लाह हिदायत देता है उसको जो हिदायत हासिल करना चाहता है। यकीनन वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं और जो यहूदी, मजूसी और ईसाई हैं और जिन लोगों ने शिर्क की रविश इख्तियार की है, यकीनन अल्लाह फैसला करेगा उनके माबैन क़यामत के दिन। यकीनन अल्लाह हर चीज पर गवाह है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह के सामने सरबसजूद हैं जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, और सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त और चौपाई, और लोगों में से भी बहुत सारे, और बहुत से इंसान ऐसे हैं जो अजाब के मुस्तहिक हो जाते हैं, और जिसको अल्लाह ही रुस्वा कर दे फिर उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं। यकीनन अल्लाह करता है जो चाहता है। ये दो गिरोह हैं जो अपने रब के बारे में झगड़ रहे हैं, तो जो लोग इनकार कर रहे हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे, उनके सरों पर खौलता हुआ पानी बहाया जाएगा। इससे जो कुछ उनके पेटों के अंदर है सब गल जाएगा, और उनकी खालें भी, और उनकी सरकूबी के लिए लोहे की हथौड़े होंगी। जब भी वो चाहेंगे कि इसमें से निकल जाएं गम की मारी, तो उन्हें उसी में वापस लौटा दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब मजा इस जलाने वाले अजाब का। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, ऐसी बागात में जिनकी नीचे नहरें बहती होंगी। पहनाई जाएंगी उसमें उन्हें सोने के कंगन और मोती, और उसमें उनका लिबास रेशम का होगा। और उनकी रहनुमाई कर दी गई है बेहतरीन बात की तरफ, और उनकी रहनुमाई कर दी गई है अल-हमीद, अल्लाह की राह की तरफ। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और वो रोकते हैं लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसको हमने सब लोगों के लिए मसावी करार दिया है, खा उसमें मुकीम हो या बाहर से आने वाले। और जो कोई इरादा करे उसमें किसी टेढ़ी राह का जुल्म के साथ, उसे हम मजा चखाएंगे दर्दनाक अजाब का। और जब हमने मुय्यन कर दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपने उस घर की जगह और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक ना करना, और मेरी उस घर को पाक रखना तवाफ करने वालों के लिए और क़ियाम, रुकू और सजदा करने वालों के लिए, और लोगों में हज की मुनादी कर दो। आएंगे आप अलैहिस्सलाम के पास लोग पैदल भी और बड़ी लागर ऊँटनियों पर भी, जो पहुंचेंगी दूर दराज गहरी वादियों में से होकर, ताकि वो हाजिर हों अपनी मुनफात की जगहों पर और अल्लाह का नाम लें मुय्यन दिनों में उन मवेशियों पर जो उसने उन्हें अता किए हैं, तो उसमें से खुद भी खाओ और खस्ता हाल मोहताजों को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि वो दूर करें अपनी मैल कुचैल और अपनी नजरी पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। ये सुन चुके, और जो कोई ताजीम करे अल्लाह की हुर्मतों की, तो वो उसके लिए बेहतर है उसके रब के नजदीक। और हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए तमाम चौपाई, सिवाय उसकी जो तुम्हें पढ़कर सुना दिया गया है, तो तुम बचो बुतों की गंदगी से और बचो झूठ बात से। यकसू हो जाओ अल्लाह के लिए, उसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो वो ऐसे है जैसे आसमान से गिर पड़ा तो उसे परिंदे उचक लें या हवा उड़ा फेंके किसी दूर दराज जगह पर। ये सब कुछ तुमने सुन लिया। और जो अल्लाह के शायर की ताजीम करेगा तो यकीनन ये दिलों के तकवा की बात है। तुम्हारे लिए इन कुर्बानी के जानवरों में नफा है एक वक्त मुअय्यन तक, फिर उनकी असल मंजिल ये कदीम घर ही है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक निज़ाम मुकर्रर किया है ताकि वो अल्लाह का नाम लिया करें उन मवेशियों पर जो उसने उन्हें अता किए हैं। तो जान लो कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो तुम उसी के सामने सरी तस्लीम खम करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशारत दे दीजिए आजिज़ी इख्तियार करने वालों को, वो लोग कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और उनको जो भी तकलीफ पहुंचे उस पर सब्र करने वाले और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायरुल्लाह में से बनाया है, तुम्हारे लिए इनमें भलाई है, तो तुम उन पर अल्लाह का नाम लो उन्हें सफ़ों में खड़ा करके। तो जब उनके पहलू जमीन पर टिक जाएं तो अब उसमें से खुद भी खाओ और कनात से बैठ रहने वाली और सवाल करने वाली को भी खिलाओ।
इसी तरह हमने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह तक ना तो उनकी गोश्त पहुंचते हैं और ना उनकी खून, लेकिन उस तक पहुंचता है तुम्हारी तरफ से तकवा। इसी तरह उसने उन्हें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम अल्लाह की तकबीर किया करो इस हिदायत पर जो उसने तुम्हें बख्शी है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहसिनीन को बशारत दे दीजिए, यकीनन अल्लाह मुदाफियत करेगा अहले ईमान की तरफ से। अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता हर बड़ी खियानत करने वाली नाशुक्री को। अब इजाजत दी जा रही है क़िताल की उन लोगों को जिन पर जंग मुसल्लत की गई है, इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया है, और यकीनन अल्लाह उनकी नुसरत पर कादिर है। वो लोग जो नाहक अपने घरों से निकाल दिए गए सिर्फ इस जुर्म पर कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह बाज लोगों को बाज दूसरे लोगों के जरिए दूर न करता रहता तो ढा दिए जाते सारी खानकाहें, गिरजे, कनीसे और मस्जिदें जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाता है, और अल्लाह लाजिमन उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा। यकीनन अल्लाह ताकतवर है, जबरदस्त है। वो लोग कि अगर उन्हें हम जमीन में तमक्कुन अता कर दें तो वो नमाज कायम करेंगे और ज़कात अदा करेंगे, और वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे, और तमाम उमूर का अंजाम तो अल्लाह ही के कब्ज़ाए कुदरत में है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग आपको झुठला रहे हैं तो उनसे पहले कौमे नूर, कौमी आद और कौमी समूद के लोग भी रसूलों को झुठला चुके हैं, और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम भी रसूलों की तकजीब कर चुकी है, और मदीन के लोग भी अपने पैगंबर को झुठला चुके हैं, और मूसा की भी तकजीब हो चुकी है। तो मैंने इन काफिरों को कुछ ढील दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, तो कैसी रही मेरी पकड़। और कितनी ही बस्तियां थीं जिन्हें हमने हलाक कर दिया और वो जालिम थीं, तो वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर, और कितनी ही नाकारा कुएं बंद पड़े हैं, और कितनी ही मजबूत बनाए हुए महल भी वीरान पड़े हैं। तो क्या ये लोग जमीन में घूमे फिरे नहीं हैं कि होती उनकी दिल जिनसे ये समझते, या होती उनके कान जिनसे ये सुनते, तो असल में आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर हैं। और ए नबी, ये लोग अजाब के बारे में आपसे जल्दी मचा रहे हैं, और अल्लाह अपने वादे की हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। और यकीनन एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के नजदीक 1000 बरस की तरह है, इस हिसाब से जो गिनती तुम करते हो। और कितनी ही बस्तियां ऐसी थीं कि मैंने उन्हें ढील दी थी, लेकिन वो गुनाहगार थीं। फिर मैंने उनको पकड़ लिया और सबने मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ए नबी, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तो तुम्हारे लिए बस एक वाज़ेह तौर पर खबरदार करने वाला हूं। तो जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, उनके लिए अल्लाह की तरफ से मगफिरत और बहुत बाइज्जत रोजी है। और जो लोग हमारी आयात को नीचा दिखाने की तगोदौ करते हैं, वही हैं जो जहन्नम वाले हैं। और हमने नहीं भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई रसूल और ना कोई नबी, मगर ये कि जब उसने खुद कोई ख्याल बांधा तो शैतान ने उसके ख्याल में खलल अंदाजी की, तो अल्लाह मनसूख कर देता है उसे जो कुछ शैतान ने डाला होता है। फिर अल्लाह अपने फैसलों को पुख्ता कर देता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है, ताकि वो शैतान की तरफ से की गई आमेजिश को फितना बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों में मर्ज हो और जिनके दिल सख्त हो चुके हों। और यकीनन जालिम लोग मुखालिफत और दुश्मनी में बहुत दूर जा चुके हैं। और इसलिए भी कि वो लोग जान जाएं जिन्हें इल्म दिया गया हो कि यकीनन ये हक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो वो उस पर ईमान ले आएं और उनके दिल उस अल्लाह के आगे झुक जाएं। और यकीनन अल्लाह अहले ईमान को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला है। और काफिर तो इस बारे में हमेशा शक्को शुबा में ही रहेंगे, यहां तक कि या तो उन पर कयामत अचानक आन धमकी या एक बांझ दिन का अजाब उन पर मुसल्लत हो जाए। उस दिन बादशाही सिर्फ अल्लाह की होगी, वो ही उनके माबैन फैसला करेगा। तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, वो नेमतों वाले बागात में होंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र की रविश इख्तियार की और हमारी आयात को झुटलाया, उनके लिए रुस्वा कुन अजाब होगा। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, फिर वो कत्ल हो गए या फौत हो गए, दोनों सूरतों में अल्लाह उनको लाजमन रिज़्क़ हसना अता फरमाएगा। और यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। वो लाजमन उनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा जिससे वो राजी हो जाएंगे। और अल्लाह यकीनन सब कुछ जानने वाला, तहम्मुल करने वाला है। ये तो है ही। और जो शख्स बदला ले उसी कद्र जिस कद्र उस पर ज्यादती की गई, फिर उस पर मजीद ज्यादती की जाए, तो अल्लाह लाजमन उसकी मदद करेगा। यकीनन अल्लाह माफ फरमाने वाला, बख्शने वाला है।
اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز اپنی ذات میں خود حمید ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور کشتی کو جو چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سیدھے راستے پر ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہاری مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کی سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور انہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں، اور ایسی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کی آثار، قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑیں ان پر جو ان کو ہماری آیت پڑھ کر سناتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ وہ ہے آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس اسے ذرا توجہ سے سنو۔ یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بہت طاقت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جھک جاؤ اور سر بسجود ہو جاؤ، اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہاری جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا اور اس کتاب میں بھی ہے، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔